एक बार आपने हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया तो जीएस में तो एडवांटेज, इसके अलावा कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी से नहीं सुना होगा कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है मटेरियल की। हिस्ट्री में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है। तो स्टोरी लाइन के लिए, कंटेंट के लिए सबसे पहले आपको लिमिटेड सोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मैप पे भी फोकस करना होगा। तो हमारे प्रिपरेशन के लिए मैप बेस्ड अप्रोच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी डेवलप ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि कोई 4 दिन का कोई कोर्स करके आप इसको डेवलप कर सकते हैं। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, परम भट्टारक, अलग अलग टाइटल रखते थे ये सामंता। सो हेलो फ्रेंड्स, I am Alok S. Jha, and today we will see how to prepare history optional for civil services examination. Fine. So we are going to start a fresh batch for history optional. Fine. And with history optional we have some other subjects also. So we have, if you can see, we have geography in English, mathematics in English, public administration in English, anthropology in English, PSIR in English. Then we have history in English, sociology, geography, right? Sociology also in English and also in Hindi. PSIR also in English and also in Hindi. History in English and also in Hindi, and geography also in English and also in Hindi. And all these batches we are going to start from 27th of November, right? So you are most welcome, right? You can choose your subject, you can decide your optional, and you are most welcome in our batches. And you will have to, right, see me when you join history, right? English batches. Fine. So today we will try to see how to prepare it, and I will also explain how we are going to learn these, right, topics. Fine. So what we are going to do today? So today we will see history as an optional, history as an optional advantages. Right, you know this, but still I will tell you that why it is a right decision to take history. Fine. So if you are considering history as an optional, so it's a great decision. I would say that it's a great decision. Fine. So history as an optional, what all advantages you have, we will see this. Then we will see next how to handle this, how to prepare this, how to prepare this optional. We will see this also, how to prepare this. And so strategy part also we will see in brief, and then we will also discuss a topic. I will take up a topic and I will tell you how we can handle this kind of topic. So in our history optional syllabus, there is a topic, nature of early medieval polity, right? This topic is nature of early medieval polity. So we will see this topic also. We will discuss this topic also. We will try to see how we can learn this topic for our history optional. Try to understand nature of early medieval polity. Generally, when we prepare this topic for or early medieval for general studies, we don't actually, right, read this kind of thing, that what was the nature of early medieval polity. But in your optional, we will have to see what was the nature of polity in early medieval India, what was the nature of polity in the Mughal period, what was the nature of polity in the Mauryan period. So we will try to see this topic briefly
so that I can also tell you that how we are going to learn all this topic in our classes. Fine, friends. First, we should start history as an advantage. You can say history, what all advantage you have when you are taking this as an optional. Fine. Okay. So, when you take history as an optional, you always feel that it's a huge syllabus, right? So, when you start thinking about history as an optional, you generally feel that huge syllabus is big. You always feel that you have to cover different, components. You always feel that it is always difficult to handle map. So, considering all this, you tend to choose what generally we feel, right, short syllabus, optional, right? But try to understand, taking history as an optional has advantages. Just see it without wasting your time. We have advantages of history. First advantage of history is that when you are preparing history, ancient India, medieval India, modern India, post-independence consolidation, world history, right? When you prepare history optional, try to understand huge chunk of the syllabus, GS syllabus gets covered, right? सबसे बड़ी बात है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको जनरल स्टडीज के लिए एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं बच्चों? अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ना भी लेते हो तो भी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो जीएस भी कवर हो गया और हिस्ट्री ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो गया। तो है ना एडवांटेज? तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बच्चे, दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल, यू डोंट हैव थियरीज, यू डोंट हैव पर्सपेक्टिव, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये सिंपल है, ये स्टोरी टाइप है। अगर आप किसी पीरियड की सोसाइटी को, इकोनॉमी को, पॉलिटी को जानते हो तो आप आराम से जो पूछा गया है उसको आंसर कर सकते हो। सो यू डोंट हैव थियरीज, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चे, तीसरी एडवांटेज है, इट इज स्टैटिक। एक बार आपने प्रिपेयर कर ली, चाहे आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट हो, एक बार आपने हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया तो जीएस में तो एडवांटेज, इसके अलावा कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि आपको करंट ओरिएंटेशन भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करंट ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो मैप में साइट पूछे जाते हैं करंट के, लेकिन वो बहुत आसान होता है, वो जीएस के लिए आप करते ही करते हैं। सो इट इज स्टैटिक इन दैट सेंस। इसकी डायनामिज्म है लेकिन इतना करंट ओरिएंटेशन जरूरी नहीं इसमें। सो इट इज स्टैटिक, इट इज सेफ ऑल्सो बच्चे, सेफ भी है ये। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा, तो एक बेसिक राइट मार्क्स आता रहता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे आप इसमें। सो सेफ है ये। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, सी द क्वेश्चन लास्ट ईयर, वट एवर क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, सी द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, simple question, right? Some 2-3, except 2-3 question, you will see the most of the questions are direct, simple, right? So if you are preparing the syllabus, you can easily understand. And the good thing is you have elaborate syllabus. What is advantage of elaborate syllabus? आप हम डर जाते हैं कि syllabus बहुत बड़ा है। अरे इस बात को समझो कि syllabus इसलिए बड़ा दिख रहा है आपको because
सब कुछ they have mentioned. Suppose when you prepare Indus Valley Civilization, what all you have to prepare, they have mentioned. You have to prepare dates, you have to prepare origin, you have to prepare extent, you have to prepare characteristics, you have to prepare significance. आपको क्या क्या पढ़ना है उस चैप्टर में, सब कुछ उन्होंने लिख दिया है. चूंकि सब कुछ उन्होंने लिख दिया है तो ये लगता है कि इट इज एलैबोरेट. तो एलैबोरेट तो फायदे वाली बात है. तो एलैबोरेट सिलेबस दिया हुआ है. अगर केवल टॉपिक देके छोड़ देते तब तो दिक्कत होती. तो देयरफॉर एडवांटेजेस. एंड देन वन मोर थिंग बच्चों, यू हैव एम्पल स्टडी मटेरियल अवेलेबल. आपने किसी से नहीं सुना होगा कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं मिल रहा है. कोई दिक्कत नहीं है मटेरियल की. फाइन. सो यू हैव एम्पल स्टडी मटेरियल एंड सक्सेस रेट इज ऑल्सो गुड. टॉपर भी हो सकते हैं अब आप हिस्ट्री ऑप्शनल रख के. राइट. तो चूजिंग हिस्ट्री ऑप्शनल इज राइट ए गुड डिसीजन. नाउ today's session is more about how to prepare it, and my real intention is to tell you how we are going to learn this in class, right? So how to prepare this optional. See, when you say how to prepare this optional, I will tell you some of the important steps briefly. I will not waste your time on unnecessarily explaining these steps. So when you say how to prepare it, I would recommend, you have to stick yourself to limited sources, but better sources. तो पहला मंत्र है बच्चों हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए कि आपको लिमिटेड सोर्सेस यूज करना है. यू हैव टू रेफर टू लिमिटेड सोर्सेस. Limited. You have to revise it again and again. Whatever we will be doing in the class, plus you will see you have NCERTs, some NCERT old, some new. We will see that. आपको NCERT तो पढ़नी ही पड़ती है, इवन GS के लिए, तो ऑप्शनल के लिए भी पढ़नी पड़ेगी. So it's not a great thing. So you have to read NCERT again and again, and then yes, you have to add some IGNOU material. Right? IGNOU material also we are using it. हम लोग ऑप्शनल के लिए कुछ IGNOU मटेरियल, सब नहीं, कुछ IGNOU मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं अपने प्रिपरेशन में. एंड देन वी हैव सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट. धीरे धीरे आप हर एक एरिया के लिए, सपोज एंशिएंट इंडिया के लिए देयर इज वन स्टैंडर्ड टेक्स्ट. सपोज उपेंद्र सिंह है ना, सपोज मिडिवल इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट वी हैव लाइक सतीश चंद्र. तो उस तरीके से मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट है. आपको केवल एक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़नी है, इग्नो का मटेरियल देखना है और एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. सो फर्स्ट part is to know the content, to know the story. है कि नहीं? हिस्ट्री में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है. तो स्टोरी लाइन के लिए, कंटेंट के लिए सबसे पहले आपको लिमिटेड सोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी करना शुरू कर दिया कहीं से. राइट? लिमिटेड और उसी को बार बार करना है. एनसीईआरटी एंड इग्नो, ये दो हमारे पास बेस मटेरियल हमारे पास होंगे, और क्लास नोट्स तो होगा ही होगा. और उसके बाद मैंने कहा कि एक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट रेफर करना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, रेफर करना पड़ता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. इज दैट फाइन? ओके. तो पहला पार्ट क्या हो गया बच्चों? पहला स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप इज टू नो द कंटेंट, टू नो द इवेंट, टू नो द स्टोरी. बट वेदर स्टोरी इज एनफ? राइट? No. So we will see that story is not enough. Story is not enough. Knowing events is not enough. Suppose you know development of, suppose, Quit India movement. You know some point regarding Cripps mission.
Right? Suppose Cripps mission also you know some point. You know some point about August offer. अगस्त ऑफर है ना बच्चों, आपको पता होगा ना, अगस्त ऑफर 1940 का है, क्रिप्स मिशन 1942 का है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो एक तो स्टेप है कि आपको इवेंट जानना होगा, आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अगस्त ऑफर लॉर्ड लिलिथगो ने दिया, फिर लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, देयर वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन देयर वाज क्रिप्स मिशन इन 1942 and finally there was quit India movement. So these are events बच्चे, these are event 1, event 2, event 3। लेकिन हम इन सारे इवेंट को केवल जान जाते हैं, उनके बारे में जान जाते हैं, क्या ये इनफ है? नहीं, हमें इन इवेंट्स को आपस में जोड़ना होगा, लिंक करना होगा। हमें लिंक करना होगा कि अगस्त ऑफर किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक हो सकता है। हमें जोड़ना होगा कि कैसे क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया, चूंकि आपने सुना होगा इन मूवमेंट के बारे में। मैंने कहा कि इफ यू नो द इवेंट्स, अलग अलग सारे इवेंट्स को आपने जान लिया कि रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इनलाइटेनमेंट हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, यह काफी नहीं है बच्चों। हमें इन सारे इवेंट्स को आपस में जोड़ने भी आना चाहिए, हम लिंक कर पाए, हम समझ पाए कैसे ये इवेंट इस इवेंट से राइट कॉन्टिन्यूटी को प्रेजेंट करता है, कैसे ये इवेंट चेंज को प्रेजेंट करता है। तो ये जो लिंकिंग है ये भी आना चाहिए, खासकर ऑप्शनल में ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सो आई वुड से दैट नोइंग इवेंट्स इज नॉट एनफ, लिंकिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और लिंकिंग कब पॉसिबल है बच्चे? लिंकिंग इज पॉसिबल थ्रू रिवीजन, है ना। हम लोग हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाते जाते हैं, उसके बारे में लिखते जाते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में सोचते नहीं हैं, अगर उसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो अननेसेसरी डेप्थ में जाते हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज। सो लिंकिंग दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज बिलीव दिस इज सेकेंड स्टेप। देन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बच्चों लिंकिंग तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है। When you are preparing for history optional, there is one more thing which you have to develop. Like, next is you have to use different opinion, historians view, है ना बच्चे। आपने टॉपर से भी सुना होगा, टॉपर को भी आपने सुना होगा, टॉपर से की भी कहते हैं कि मैंने हिस्टोरियन का नाम लिखा था, है ना, हमने हिस्टोरियन को कोट किया था, डिफरेंट सोर्सेस को कोट किया था। एक ही चीज को बुद्धिस्ट लिटरेचर अलग तरह से बताती है, उसी चीज को जैना लिटरेचर अलग तरीके से बताती है, उसी चीज को ब्राह्मणिकल लिटरेचर अलग चीज से बताती है, उसी चीज को आर्कियोलॉजी अलग तरीके से बताती है। उसी तरीके से मॉडर्न पीरियड में डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग विचार है उनका। कई ऐसे चीज है जहां पे अलग अलग विचार है। तो अगर आप उन सारे ओपिनियन को अप्रिशिएट नहीं करते हो अबाउट पर्टिकुलर इवेंट, अबाउट पर्टिकुलर डेवलपमेंट, सो इट इज डिफिकल्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, एनालाइजिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट, related to different writers about the particular event is important. For example, suppose decline of Indus Valley civilization. You have different opinion. अगर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आता है तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मॉर्टिमर व्हीलर का नाम है, डेल्स का नाम है, रेक्स का नाम है, मल्लिकन पॉसिल का नाम है, श्री रत्नागर का नाम है।
राइट, रफीक मुगल का नाम है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर वो एग्जामिनर नहीं देखते हैं तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो आपको हिस्टोरियंस के व्यू को भी रिफ्लेक्ट करना होगा, उसके बारे में राइट सोचना होगा, उसको यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर व्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन हां, जितने डिफरेंट व्यूज हैं हम लोग उसको लिखेंगे। सडन डिक्लाइन थियरी, राइट, ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी, फेयर सर्विस का इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्या है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि हमें यूज करना पड़ता है, एंड विदाउट यूजिंग इट राइट यू कैनॉट गेट गुड मार्क्स, है ना। तो हमें ये करना पड़ता है, ये हम जीएस में नहीं करते, हमें ऑप्शनल के लिए हमें ये करना पड़ता है। फाइन। उसी तरीके से अगर 2-3 और उदाहरण मैं लूं आपको, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सपोज नेचर ऑफ मौर्यन पॉलिटी हो गया, नेचर ऑफ मौर्यन पॉलिटी, मौर्यन पॉलिटी, राइट। तो अलग अलग व्यू है, रोमिला थापर की व्यू है सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, देन यू हैव फुसमैन्स व्यू डिसेंट्रलाइज्ड, हाउ मौर्य राइट रिविजिटेड में रोमिला थापर ने अपने व्यू को चेंज किया। तो हमारे पास अलग अलग व्यूज हैं, हमें उसके बारे में बात करना होता है। ये आसान होता है, आप ये ना सोचे कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आसान होता है, लेकिन हाँ डिफरेंट अलग अलग व्यूज हैं जो आपको लिखना पड़ता है कि नहीं। सपोज उसी तरीके से अगर आप देखें इवन मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो इवन राइट द 18th सेंचुरी डार्क एज, 18th सेंचुरी डार्क एज, राइट, डार्क एज था या नहीं था 18th सेंचुरी, डार्क एज डिबेट इज देयर, वी हैव डिफरेंट व्यूज, है ना, हमारे पास डिफरेंट व्यू है, हमें वहां पर हिस्टोरियन का मदद लेना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि किस हिस्टोरियन का क्या मत है। सपोज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, हमें बताना पड़ता है कि मनसबदारी क्राइसिस किसका राय है, क्या है वो, है ना। हमें अतहर अली की बात करनी पड़ती है, हमें जागीरदारी क्राइसिस की बात करनी पड़ती है, सतीश चंद्रा की, हमें इरफान हबीब की बात करनी पड़ती है ना, सिरिन मुसबी की बात करनी पड़ती है। तो हमें बहुत सारे हिस्टोरियन के व्यूज को भी अप्रिशिएट करना पड़ता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन हिस्ट्री ऑप्शनल, राइट। और ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में, इग्नो मटेरियल में दी गई रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ विशेष चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसके लिए रिसर्च करना होगा एमए के लेवल पर, ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक डिबेट का समरी हमारे टेक्स्ट में होता है, आपको उसको यूज करना पड़ता है। सो दिस ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। देन बच्चों, वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री ऑप्शनल इज, हमारे पेपर 1 में एंशिएंट इंडिया में एक क्वेश्चन जो एकदम जरूरी है आपको अटेम्प्ट करना, आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। यू हैव टू रिकॉग्नाइज 20 साइट, है ना, ऑलरेडी एक मैप में वो रहता है, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। देयर इज सम हिंट दैट दिस साइट इज हड़प्पन साइट, दिस साइट इज इंस्क्रिप्शनल साइट। तो आपको हिंट दिया रहता है, आपको रिकॉग्नाइज करना रहता है, एंड देन यू हैव टू राइट 30 वर्ड्स ऑन देम। एंड दिस इज ए गेम चेंजर, मैप गेम इज ए गेम चेंजर, and you cannot develop this through some shortcut method. So gradually you have to develop this, you have to play this map game. कहने का मतलब, जब हम सपोज नियोलिथिक पीरियड कर रहे हों, सपोज हम नियोलिथिक फेज कर रहे हों, तो हमें उसी समय में जितने नियोलिथिक साइट्स हैं, राइट, सपोज 1 2 3 4, हमें उसको मैप पे देखना होता है कि नहीं, हमें उसको मैप पे देखना होता है। हमें देखना होता है कि कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट में ये साइट है, केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में ये साइट है। सो ग्रेजुअली हर एक थीम पे, थीम बेस्ड अप्रोच, थीम बेस्ड अप्रोच, थीम बेस्ड अप्रोच,
हम बहुत सारे थीम को लेते हैं, जैसे PGW साइट्स, NBPW साइट्स, टेम्पल साइट्स। आप देखोगे बहुत सारी किताबों में इस तरह से आपको मिलेगा, और उस थीम को हम एक प्लेन मैप पे और एक स्टेट बाउंड्री वाले मैप पे हर एक थीम को धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं, बार बार उसको देखते हैं, है ना। उसके बाद एक फॉर्मूला भी डेवलप करते हैं। तो जब आप एक बार श्योर हो जाते हो कि चलो इस पॉकेट में ये सारे साइट्स हैं, इस पॉकेट में ये सारे साइट्स हैं, तो फिर आप फॉर्मूला डेवलप करते हो, तो धीरे धीरे मैप पे काम करते हो। दिस इज ऑल्सो वन चैलेंज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। लेकिन हम लोग क्लास में इन सारी चीज को प्रायोरिटी देते हैं। वी कंसीडर इट एज ए गेम, देयरफॉर आई एम राइटिंग मैप गेम। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बोरिंग ऑल्सो। अगर आप इसको छोड़ देते हैं बच्चों, तो बाद में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। ये आपके रैंक को इधर से उधर कर सकता है कि नहीं। तो मैप पे भी फोकस करना होगा। तो हमारे प्रिपरेशन के लिए मैप बेस्ड अप्रोच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड इट कैन बी डेवलप ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि कोई 4 दिन का कोई कोर्स करके आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट। अगर आपने तुरंत खुद नहीं मार्क किया है, आपको पता होना चाहिए कि भोपाल कहां है, होशंगाबाद कहां है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि ये साइट सपोज, राइट, मेहरगढ़ कहां है। आपको पता होना चाहिए कि ये साइट सपोज लोथल, धोलावीरा कहां है। आपको साफ एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे देखते देखते प्रैक्टिस करते करते ये चीजें हो जाती हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू प्रिपेयर इट, एंड देन फाइनली व्हेन यू हैव स्टोरीज, व्हेन यू कैन लिंक, when you have different opinion and you can analyze different opinion and you have practiced map, उसके बाद बच्चों एक और चीज चाहिए होता है, and it is right, writing practice, test. You don't have to ignore test, right? And don't think that there is some ready-made answer. ये मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि कहीं पर रेडीमेड आंसर अवेलेबल है और हम उसको पढ़ेंगे और हूबहू वी विल राइट रिप्रोड्यूस दैट। नो, यू विल ऑलवेज नो सर्टेन पॉइंट एंड यू हैव टू यूज दोज पॉइंट। यू हैव टू यूज दोज पॉइंट इन योर आंसर इन अकॉर्डेंस, according to the demand of the question, in the context of the question, in the context of the demand of the question. So writing practice is also must. If you are not practicing, so you are losing. So I will not say that initially you need writing practice. So initially you are working on content, right? Working on story. Then you are revising, you are working on link. You are working on link, है ना। आप लिंक पर काम करते हैं ताकि जो आपके पास कंटेंट आया है उसको यूज करें। देन यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव, यू आर वर्किंग ऑन हिस्टोरियंस views. Then you are also working on map, and then finally you are writing, right, previous year question writing, trying to develop some answer, right? You are right attending some test so that you can get confidence that you can reproduce some point. Suppose if they are asking town planning of Indus Valley civilization, if they are asking significance of Kalhan as a historian, you can reproduce some point. सारे पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं जल्दी से कि नहीं आते, इसके लिए राइटिंग भी जरूरी है। आप सोचोगे कि नहीं डे 1 से राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, तो राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से कैसे होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। पहले कंटेंट होगा आपके पास, डिफरेंट ओपिनियन को आप अप्रिशिएट करोगे, सारे इवेंट को लिंक कर पाओगे बच्चे, तभी तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी। राइटिंग प्रैक्टिस इन सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट किए बिना कैसे होगी?
तो लेकिन जब ये चीजें हो जाती है तो राइटिंग एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, सपोज कोई स्टेटमेंट पूछा हुआ है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये एक हिस्टोरियन का व्यू है, ये एक मत है, तो आप क्या उस पे लिखोगे? आपको तो बात समझ में ही नहीं आएगी, है कि नहीं? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए एंड देन यू कैन गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। फाइन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। तो दिस वे यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस। फाइन, नाउ व्हाट we will do in the class. Generally, I go for a simple approach. I will take up a topic. है ना बच्चे? हम लोग क्या करते हैं? सपोज हम लोग, हमारे सिलेबस का 4 पार्ट है ना? हमारे सिलेबस का मेनली 4 पार्ट है। ये दोनों पार्ट पेपर 1 का है, पेपर 1, और ये दोनों पार्ट पेपर 2 का है, राइट? पेपर 2 का है। पेपर 1 में एंशियंट इंडिया है, पेपर 1 के दूसरे सेक्शन में मिडिवल इंडिया है, पेपर 2 के पहले सेक्शन में मॉडर्न इंडिया है, और लास्ट में 2-3 टॉपिक, राइट, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी है, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है ना? तो टॉपिक दिए गए हैं 1, 2, 3, इस तरह से टॉपिक दिया हुआ है। तो हम लोग जिस एरिया को भी लेते हैं, सपोज मिडिवल इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया, जिस किसी टॉपिक से, सेक्शन से, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों पेपर के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस किसी सेक्शन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग उस टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं और उसकी स्टोरी समझते हैं पहले, और फिर उसको डिफरेंट डायमेंशन में बांटते हैं। वी डिवाइड दैट इन डिफरेंट डायमेंशन एंड देन वी राइट सम पॉइंट इन द क्लास. And we also see previous year question also, what kind of question they have asked, and can we handle these question on the basis of the points we have. तो हम लोग क्लासेस में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि उसको नहीं लिखते, उसको लिखते हैं क्लासेस में, और फिर देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या हम उसका आंसर कर सकते हैं. सो दिस वे वी कंसोलिडेट वन टॉपिक. तो किसी एक टॉपिक को लिया, उसके एक सब टॉपिक को लिया, उसको प्रिपेयर किया, दूसरे टॉपिक पे गए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सपोज हमारे पास एक सिलेबस भी है बच्चे, हमारे पास एक सिलेबस है. सपोज ये एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है. तो एंशिएंट इंडिया में सपोज हमने शुरू किया सोर्सेस से, है ना? हम लोगों ने शुरू किया सपोज सोर्सेस से. तो हम लोग पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को लेंगे, इसको डिफरेंट टॉपिक में बांटेंगे. इसी तरीके से डिफरेंट एक एक टॉपिक को लेना है, उसके सब टॉपिक को लेना है, उसके डिफरेंट डायमेंशन को लेना है, और धीरे धीरे पूरे सिलेबस पर काम करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू वर्क ऑन द इंटायर सिलेबस. अब वो जमाना नहीं है कि आपने कहा कि अरे ये एरिया एकदम बेकार है. अराउंड 90% ऑफ द सिलेबस पे आपको काम करना पड़ता है. 10% है ऐसा एरिया जो हम लोग राइट उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन छोड़ते नहीं है. सो you have syllabus of ancient India, you have 12 topics. Then you have syllabus of, you can say, medieval India. Here also you have 12 topic. So you have 24 topic in paper 1, right? 24 topic in paper 1. Then in paper 2 also you have in modern India 15 topic. Then you have, right, more topic in world history. So 27. So this way we generally prepare, राइट, आवर ऑप्शनल. हमारे पास सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं बच्चे. जैसे मैंने बताया पेपर 1 में 24 टॉपिक दिए गए हैं और उसके सब टॉपिक दिए गए हैं. उसी तरीके से 27
राइट टॉपिक दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं। ये टॉपिक नहीं कहोगे आप, ये तो चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। तो 27 चैप्टर्स दिए गए हैं आपको। सेकंड पेपर में हम लोग धीरे धीरे उन सारे चैप्टर पे काम करते हैं, पूरे सिलेबस पर काम करते हैं, मोर देन 90% सिलेबस पर काम करते हैं, और देखते हैं कि जो हम लोगों ने क्लास में किया है क्या हम उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दिस वे बी प्रिपेयर, राइट, हिस्ट्री। इज दैट फाइन? नाउ just to tell you that how we are, right, getting this, how we are taking this topic. So if you can see, in early medieval, right, in early medieval period there is a topic called polity, and there is a topic called nature of polity. So what we will do, we will take up this topic for you. तो हम लोग आपके लिए आज एक ब्रीफ आइडिया हम लोग देखेंगे कि what was the nature of polity in early medieval India. Nature of polity of early medieval India. Right, how to prepare this. Try to understand. When we say polity in early medieval India, you all know that early medieval India, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंशियंट से मिडेवल इंडिया की तरफ आते हैं, जब एंशियंट से मिडेवल इंडिया की तरफ आते हैं, तो हमारा जो पहला एरिया होता है वो होता है अर्ली मिडेवल इंडिया, है ना। अर्ली मिडेवल इंडिया विच इज फ्रॉम 8th to 13th century AD, ये अर्ली मिडेवल इंडिया है। फिर यू हैव द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, देन यू हैव द पीरियड ऑफ मुगल, है ना। तो हम मिडेवल इंडिया में जब प्रिपेयर करते हैं बच्चों, तो हमारे पास मेनली 3 पार्ट है। आप सब शायद जानते होंगे मिडेवल इंडिया को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। अर्ली मिडेवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत का पीरियड। तो अर्ली मिडेवल का पीरियड कौन सा है? 8th to 13th century AD, इस पीरियड को कहते हैं अर्ली मिडेवल इंडिया। तो टॉपिक ये है कि इस पीरियड का पॉलिटी का नेचर क्या था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पीरियड की जो डिफरेंट डायनेस्टीज है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस, दैट वी हैव डिफरेंट स्मॉलर डायनेस्टीज इन अर्ली मिडेवल इंडिया, है ना। चाहे नॉर्थ की बात की जाए या साउथ की बात की जाए या ईस्ट की बात की जाए या वेस्ट की बात की जाए, हमारे पास अर्ली मिडेवल इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे। आप सब जानते हो इस बात को, आपने जरूर सुना होगा। अर्ली मिडेवल पीरियड में, खासकर पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, स्मॉलर किंगडम आने शुरू हो गए, छोटे छोटे किंगडम आने शुरू हो गए, है ना। छोटे छोटे किंगडम, कोई बहुत पावरफुल एक बड़ा किंगडम नहीं था, छोटे छोटे किंगडम आने शुरू हो गए। सपोज अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखो, तो देखो जरा, नॉर्थ इंडिया में चौहान, बहुत सारे राजपूत आपको दिखेंगे, राजपूत किंगडम, चौहान, परमार, चंदेल, है ना। अर्ली मिडेवल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के डेथ के बाद कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो गई, है ना। 3 पक्षीय, त्रिपक्षीय स्ट्रगल शुरू हो गई। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, जरा देखो, ईस्ट के थे पाल, प्रतिहार थे सेंट्रल इंडिया के, राष्ट्रकूट थे दक्कन के। तो अर्ली मिडेवल इंडिया में ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन सारे रीजनल किंगडम के बारे में थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हम लोग पाल के बारे में जान लेते हैं, प्रतिहार के बारे में जान लेते हैं, राजपूत के बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग दक्कन में राष्ट्रकूट के बारे में जानते हैं, साउथ में आते हैं तो चोल की बात करते हैं। फाइन। एंड देन ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल।
तो हम लोग ओवरऑल इस पीरियड के पॉलिटी के बारे में ये जान लेते हैं। जीएस में भी यही करते हैं, इन सब के बारे में, इसके फाउंडर कौन थे, इसके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थे, पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या थे। वी जनरली प्रिपेयर ऑल दिस, बट फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, in the context of all these development, you have to see that what was the nature of polity of early medieval period. Nature क्या था polity का early medieval period में, right? So actually we have to prepare nature of early medieval polity. अर्ली मिडिवल पॉलिटी, फाइन। उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन तो थोड़ा चाहिए ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यह भी चाहिए कि ओवरऑल पॉलिटी का नेचर क्या था, ओवरऑल सोसाइटी का क्या नेचर था, इकोनॉमी का क्या नेचर था, कल्चर का क्या नेचर था, तो पॉलिटी की क्या नेचर थी, इसके बारे में हिस्टोरियन का डिबेट है। यू हैव डिफरेंट ओपिनियन, you have different opinion regarding the nature of early medieval polity, right? आप सबको पता है कि अर्ली मिडिवल पॉलिटी में सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं थी। आपने मौर्यन पीरियड में भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी देखी, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन भी था। गुप्ता पीरियड में सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी देखी, थोड़ा बहुत या कह लो कि कुछ ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी था। लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड आते आते सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी वाला मामला तो दिखने नहीं लगा। सो अर्ली मिडिवल पॉलिटी के बारे में एक राय यह है कि देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, नो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। कोई बड़े एम्पायर नहीं थे, देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, right? And this period, early medieval India, is a period of political fragmentation, political fragmentation, political fragmentation. And you must be knowing that some historian, particularly Marxist historian, consider the early medieval polity as feudal polity. फ्यूडल पॉलिटी, इज दैट फाइन बच्चे? तो जब नेचर ऑफ अर्ली मिडिवल पॉलिटी की बात करते हैं तो अर्ली मिडिवल पॉलिटी के बारे में एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन का क्या मत है? एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन का मत है कि यह सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं थी, यह पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का युग था। इसकी जो पॉलिटी थी यह फ्यूडल पॉलिटी थी, फ्यूडल, है ना? तो फ्यूडल पॉलिटी का मतलब क्या होता है? फ्यूडल पॉलिटी का मतलब, फ्यूडल पॉलिटी का मतलब लैंड बेस्ड वेल्थ एंड पावर। ये जो पॉलिटी थी ये लैंड बेस्ड था, इसमें लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लैंड बेस्ड। और इस आइडिया पे काम किया है प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने। उससे पहले डी कोसाम्बी ने यह आइडिया दिया और फिर आर.एस. शर्मा ने यह काम इसको आगे बढ़ाया और इस पीरियड को क्या कहा? इंडियन फ्यूडलिज्म। इस पीरियड को कहा कि यह यूरोपियन फ्यूडलिज्म से थोड़ा अलग था, यह इंडियन फ्यूडलिज्म है। तो यह जो आइडिया है कि अर्ली मिडिवल इंडिया को फ्यूडल पॉलिटी कहते हैं, यह आइडिया सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने दिया। वो पहले लोग थे जैसे डी कोसाम्बी ने फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबव, फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो का कंसेप्ट दिया। फिर आर.एस. शर्मा ने डिक्लाइन ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट दिया, डी अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट दिया और कहा कि ये जो पीरियड है ये फ्यूडल पीरियड है, इसलिए इसकी पॉलिटी भी जो थी वो फ्यूडल पॉलिटी थी। सामंता सिस्टम जो गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ
वो इस पीरियड में आते आते बहुत बड़ा हो गया। हर्षचरित भी कई तरह के सामंत का उल्लेख करता है ना, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, परम भट्टारक, अलग अलग टाइटल रखते थे ये सामंता। तो आर एस शर्मा ने कहा कि ये जो फ्यूडल पॉलिटी आई, इसका जड़ कहां है? इसका जड़ बहुत पीछे है। इसका जड़ है लैंड ग्रांट से। इसका जड़ है लैंड ग्रांट से, जो कि सातवाहना पीरियड में दिया जाने लगा। मतलब आर एस शर्मा कहते हैं कि धीरे धीरे राजा अपने राइट्स को, अपनी ताकत को, अपने शक्ति को छोड़ते चले गए। कैसे? लैंड ग्रांट से। और जब लैंड ग्रांट बृहत रूप ले लेती है तो यह क्या जन्म देती है? फ्यूडल पॉलिटी का। इसका मतलब इसमें जो बहुत सामंत थे वो सब अपने में पावरफुल थे। छोटे छोटे सामंत जो थे अपने में पावरफुल थे, अपनी सेना रखने लगे, अपना टैक्स कलेक्ट करने लगे, अपनी जुडिशियल सिस्टम डेवलप करने लगे। तो ये जो पीरियड है अर्ली मिडिवल पीरियड, इस पीरियड को आर एस शर्मा ने कहा कि ये फ्यूडल पॉलिटी को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट फ्यूडल पॉलिटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ पावर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल हायरार्कीज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डी अर्बनाइजेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनेटरी एनीमिया, है ना, कॉइन मिलना बंद हो गया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स्ड लेबर। तो इस तरीके से आर एस शर्मा ने इस पीरियड को इंडियन फ्यूडलिज्म कहा, और कहा कि इस पॉलिटी को भी हम फ्यूडल पॉलिटी कहते हैं। राइट। तो आर एस शर्मा ने यह मत दिया और कहा कि ऑल इंडिया लेवल पर भी ये एप्लीकेबल है। इसको कई और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने एक्सपैंड किया। सपोज हरबंस मुखिया, बीएनएस यादव, सपोज डीएन झा, इन लोगों ने अलग अलग डायमेंशन जोड़े। सपोज डीएन झा, ही एडेड व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल डायमेंशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडल पॉलिटी। सपोज भक्ति इज ऑल्सो सरेंडर, लॉयलिटी, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्यूडल पॉलिटी। तो इस पीरियड को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने फ्यूडल पॉलिटी कहा, फ्यूडल पॉलिटी कहा। और फ्यूडल पॉलिटी का मतलब लोकलाइज्ड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं, कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते थे? राजा ने एक लैंड ग्रांट दे दिया, उस लैंड पे कोई गवर्न करने लगा, धीरे धीरे जुडिशियल राइट भी उसकी हो गई। तो बहुत सारे सामंत का जन्म हो गया। यही सामंत को अंग्रेजी में फ्यूडल कहने लगे, है ना। तो सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, ये आ गया। तो अर्ली मिडिवल इंडिया को क्या बताया गया? आर एस शर्मा ने क्या कहा कि कैसी पॉलिटी थी अर्ली मिडिवल इंडिया की? पॉलिटी कैसी थी? फ्यूडल पॉलिटी थी। फ्यूडल पॉलिटी का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, स्मॉलर पावर, लोकलाइज्ड गवर्नेंस, पॉलिटिकल हायरार्की, डिस्पर्सल ऑफ पावर, राइज ऑफ मल्टी सेंटर्ड, यू कैन से पावर स्ट्रक्चर, है कि नहीं? कोई एक मेन सेंट्रल पावर नहीं होगा, मल्टी सेंटर्ड पावर स्ट्रक्चर। तो पहली जो धारणा बनी, पहला जो कंसेप्ट बना अर्ली मिडिवल पॉलिटी की, वो कंसेप्ट दिया किसने? आर एस शर्मा ने। ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंस थे डीडी कोसांबी से, और उन्होंने कहा कि अर्ली मिडिवल पॉलिटी कैसी थी? फ्यूडल पॉलिटी थी। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग दिस? राइट। तो फ्यूडल पॉलिटी का कंसेप्ट आया अर्ली मिडिवल पॉलिटी के बारे में। इसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि एक नई व्याख्या आई, एक नई व्याख्या आई, और कहा गया जो ये पॉलिटी है, ये जो स्टेट है अर्ली मिडिवल इंडिया का, ये
सेगमेंट्री स्टेट है। एक नई कंसेप्ट आई, सेगमेंट्री स्टेट। सेगमेंट्री स्टेट, इसको किसने दिया? बर्टनस्टीन ने दिया। बर्टनस्टीन ने दिया सेगमेंट्री स्टेट का मॉडल। तो दूसरा व्यू है अर्ली मिडेवल इंडिया पर, जो दूसरा व्यू है वो है बर्टनस्टीन का। उसने कहा कि अरे फ्यूडल पॉलिटी सही व्याख्या नहीं है, सेगमेंट्री स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। सेगमेंट्री स्टेट का क्या मतलब है? वो इन्फ्लुएंस थे अलूर सोसाइटी के, अफ्रीका के, वहां से ये कंसेप्ट उन्होंने बोरो किया। और उन्होंने कहा कि इस पीरियड में क्या हो रहा था कि जब आप धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ जाएंगे तो पॉलिटिकल अथॉरिटी कम होने लगेगा। पॉलिटिकल अथॉरिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसका मतलब दैट कोर एरिया में पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, कोर एरिया में पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, लेकिन पेरीफेरी में पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग कोर एरिया से दूर जाते जाएंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटी घटने लगेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब बीच में कोर एरिया में यहां तो पावर होगा, एक आदमी का पावर चलेगा, सेंटर अथॉरिटी का पावर चलेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप बाहर होते जाएंगे, पेरीफेरी में होते जाएंगे, वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी कम होता जाएगा, वहां पर रिचुअल अथॉरिटी रहेगी। वहां पे कौन सी अथॉरिटी रहेगी? रिचुअल अथॉरिटी। सो देयरफॉर सेगमेंट्री स्टेट में बर्टनस्टीन ने दो कंसेप्ट दिया, पॉलिटिकल सॉवरेंटी और रिचुअल सॉवरेंटी। और कहा कि एक तो कोर एरिया होता है, दूसरा स्टेट सेगमेंट होता है। दो बात पार्ट है इंपायर का, एक तो कोर एरिया और दूसरा स्टेट सेगमेंट। और स्टेट सेगमेंट में अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं चलती, यहां पर लोकल चलता है, लोकल अथॉरिटी चलती है। और बर्टनस्टीन ने इस कंसेप्ट को इस कंसेप्ट को चोला इंपायर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, चोला इंपायर के कॉन्टेक्स्ट में इस आइडिया को समझाया। कहा कि नाडू सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने कहा कि जो सेगमेंट है, जो स्टेट सेगमेंट है, वहां पर एक अलायंस होता है, ब्राह्मण और पीजेंट का अलायंस होता है। बड़ी खास बात कह दी, ब्राह्मण और पीजेंट का अलायंस होता है नीचे के लेवल में, और वही अथॉरिटी होता है। मतलब राजा की अथॉरिटी नहीं चलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। राजा की अथॉरिटी केवल कोर में, बाकी जगह उनकी केवल रिचुअल अथॉरिटी होगी। और असली अथॉरिटी किसकी होगी? ब्राह्मण और पेजेंट अलायंस, लोकल जो एलीट होगा उसकी अथॉरिटी होगी। सो इस तरीके से बर्टनस्टीन ने कौन सा मॉडल दिया? सेगमेंट्री स्टेट का मॉडल दिया। और उन्होंने कहा कि यह केवल चोला में नहीं, पूरे इंडिया में यह एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया गया। फाइन, ओके। सो बच्चे, मैंने आपको अर्ली मिडेवल पॉलिटी के बारे में दो व्यू बताया। एक, अर्ली मिडेवल पॉलिटी में बहुत छोटे छोटे किंगडम थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पावर सेंटर था, है कि नहीं? स्मॉलर किंगडम थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पावर सेंटर था, पॉलिटिकल हायरार्की थी, बहुत तरह के सामंत थे। तो इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने अर्ली मिडेवल पॉलिटी को फ्यूडल पॉलिटी कहा। कौन सी पॉलिटी कहा? फ्यूडल पॉलिटी कहा। ठीक है, लेकिन इसको बहुत दिनों तक माना गया, अभी भी माना जाता है, लेकिन अलग अलग विचार आए। जो सबसे इफेक्टिव विचार आया, खासकर 1960s में सबसे इफेक्टिव विचार, 70s 80s में ये पॉपुलर होना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं सेगमेंट्री स्टेट मॉडल। किसने दिया ये सेगमेंट्री स्टेट मॉडल? बर्टनस्टीन ने दिया ये मॉडल। इस मॉडल को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया चोला के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बर्टनस्टीन का कहना था कि इसको अप्लाई किया जा सकता है अलग अलग एरिया में भी, है कि नहीं?
मतलब कोर में सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन धीरे धीरे ये डिमिनिश करती है, और स्टेट सेगमेंट है अलग अलग, और स्टेट सेगमेंट में राइट अथॉरिटी अलग है। रिचुअल अथॉरिटी रहेगी लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी कमजोर हो जाएगा। तो किसकी अथॉरिटी चलेगी लोकल एरिया में? तो ब्राह्मण पेजेंट अलायंस की अथॉरिटी चलेगी। तो ये आइडिया सेगमेंट्री स्टेट मॉडल की, राइट, ऑफ कोर्स ये अफ्रीका के एक सोसाइटी से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने वही वाला आइडिया यहां पर राइट इसी को चेप दिया, इसी को राइट यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, तो दूसरी थियरी हो गई। ये बात सही है। तो एक्चुअली दो मॉडल प्रभावी रहे समझने के लिए अर्ली मिडेवल पॉलिटी को। पहला फ्यूडल पॉलिटी, दूसरा सेगमेंट्री पॉलिटी, सेगमेंट्री स्टेट मॉडल बर्टनस्टीन की। लेकिन धीरे धीरे एक अलग क्लास ऑफ हिस्टोरियन का जन्म होने लगा, जिसको हम लोग कहते थे नॉन अलाइंड हिस्टोरियन। सुना है आपने नाम, नॉन अलाइंड हिस्टोरियन। और ये जो नॉन अलाइंड हिस्टोरियन थे, इनको सबसे ज्यादा बल मिला एक जर्मन हिस्टोरियन से, जिनका नाम था हर्मन कुल्के। जर्मन हिस्टोरियन हर्मन कुल्के से आधार मिला। और इंडिया में इन दोनों के अलावा एक तीसरा मॉडल डेवलप हुआ, थर्ड मॉडल डेवलप हुआ एक्सप्लेन करने का अर्ली मिडेवल पॉलिटी, और इसको कहते हैं इंटीग्रेटिव पॉलिटी। इंटीग्रेटिव पॉलिटी, राइट, इसको दिया बी.डी. चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया इसको? बी.डी. चट्टोपाध्याय ने। फाइन। तो इन दोनों मॉडल, कौन कौन दोनों मॉडल? फ्यूडल पॉलिटी और सेगमेंट्री स्टेट मॉडल। इन दोनों मॉडल के अलावा एक तीसरा मॉडल डेवलप हुआ जो बहुत पॉपुलर हुआ। जैसे मैंने बताया कि जर्मन हिस्टोरियन ने इनको पॉपुलर किया, और इंडिया में बी.डी. चट्टोपाध्याय ने इसको बढ़ाया और कहा कि इंडिया में ना फ्यूडल पॉलिटी एप्लीकेबल है, ना सेगमेंट्री स्टेट एप्लीकेबल है। इंडिया में इंटीग्रेटिव पॉलिटी थी। कहने का मतलब सेंट्रल अथॉरिटी और लोकल जो अथॉरिटी थे उनमें इंटीग्रेशन था, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग अथॉरिटी थे, दोनों में कोई लिंक नहीं था, दोनों में इंटीग्रेशन था। और उन्होंने रिजेक्ट किया सेगमेंट्री स्टेट मॉडल को, कहा कि रिचुअल अथॉरिटी तो हमेशा से रही है, राइट। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण पीजेंट अलायंस की बात करते हैं आप लोकल सेगमेंट में, यह पॉसिबल नहीं है, ब्राह्मण और पीजेंट अलायंस है कि नहीं। तो इन्होंने सेगमेंट्री स्टेट मॉडल को क्रिटिसाइज किया, और ऑफ कोर्स इन्होंने फ्यूडल पॉलिटी को भी क्रिटिसाइज किया। कहा कि गलत है ये आपकी राय कि देयर वाज, राइट, यू कैन से नो ट्रेड, देयर वाज नो अर्बनाइजेशन। तो बी.डी. चट्टोपाध्याय ने अर्बनाइजेशन की बात की, मॉनेटरी एनीमिया को रिजेक्ट किया। तो धीरे धीरे बी.डी. चट्टोपाध्याय ने एक नए मॉडल की डेवलप की, जिसमें स्टेट और लोकल अथॉरिटीज के बीच में इंटीग्रेशन होने लगा, राइट। कोई गैप नहीं था, दोनों में इंटीग्रेशन था। सो देयरफॉर द थर्ड मॉडल डेवलप्ड, व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, इंटीग्रेटिव पॉलिटी। सो you have three model of, you can say, polity in, you can say, early medieval period. Three model of polity. One is feudal polity, second is segmentary state model, third is integrative model. बच्चे जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर मैनर। नेचुरली मैंने केवल आपको यह बताने की कोशिश की कि हम लोग जब इन तीन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे तो हम बेहतर समझेंगे। और यूपीएससी के लिए यह जानना जरूरी है कि हिस्टोरियन का ओपिनियन क्या है, और नेचुरली इसके साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन यह होगा कि अभी भी इंटीग्रेटिव पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा चुका है, अभी भी यह रिसर्च के स्टेज में ही है, राइट। और
ऑफ कोर्स सेगमेंट्री स्टेट को साउथ इंडिया में अप्लाई किया जा सकता है, नॉर्थ इंडिया में इसको अप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो इसलिए अभी भी स्टिल वी फॉलो व्हाट इज कॉल्ड फ्यूडल मॉडल, फ्यूडल पॉलिटी मॉडल। तो इसीलिए फ्यूडल पॉलिटी मॉडल को अभी भी एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह का कंक्लूजन भी हो सकता है। तो बात यह है कि अगर नेचर ऑफ अर्ली मिडेवल पॉलिटी पूछी जाए और आपने फ्यूडल पॉलिटी ऑफ आर एस शर्मा, आपने सेगमेंट्री मॉडल ऑफ बर्टनस्टीन और इंटीग्रेटिव पॉलिटी ऑफ बी डी चट्टोपाध्याय की बात नहीं की, नॉन अलाइंड हिस्टोरियन की बात नहीं की, तो ऑफ कोर्स वो आंसर आपका अधूरा रहता है। इज दैट फाइन? सो थैंक्स ए लॉट, राइट। मुझे आशा है कि आपको राइट ये बात समझ में आई होगी कि हमें हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, और हम हिस्ट्री ऑप्शनल को किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, हमें क्या क्या हिस्ट्री ऑप्शनल लेते समय ध्यान रखना चाहिए और हिस्ट्री ऑप्शनल लेने के बाद उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो ऑल द बेस्ट, होप वी विल मीट राइट इन आवर क्लासेस। थैंक यू।